कि जब परमेश्वर आपके हाथ में वेल्थ दे तो कहीं आप उसको अपना रिवॉर्ड ना समझ लें. That when God will put wealth in your hand, you will not take that as your reward. Wealth is not a reward. धन हमारा प्रतिफल नहीं है. मैं फिर से इस बात को बोलता हूं कि आप समझो. I'll say it again so you understand. Wealth is not our reward. धन हमारा इनाम या प्रतिफल नहीं है. Wealth is just a tool. धन केवल एक टूल है, एक औजार है. It will be given to you with a purpose. एक मकसद के साथ, उद्देश्य के साथ वो आपको And दिया in जाएगा. the end, you will be held accountable to how did you use the wealth for the purpose for which God gave it to you. और अंत में आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे कि किस मकसद के लिए वो दिया गया था और आपने उसको कैसा इस्तेमाल किया है. मैं चाहता हूं कि आप राइट पर्सपेक्टिव में इस मैसेज को सुने, कि आप इसको समझें कि हमारा हृदय धन के पीछे नहीं है. I want you to hear this message in the right perspective so that you understand that our heart is not after money. किसी को 1 तोड़े दिए गए, One was given 1 किसी को talent, 5 दिए गए, one was given किसी 5, को 10 दिए गए, another was given 10 और 10 talents. आखिर में जवाबदारी हुई. And at the end they were all accountable, answerable. आपको क्या लगता है जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है इस पृथ्वी पे, अंत में जवाबदारी होगी? What do you think what God has put in our hands on the earth, at the end we will have to give an account, give an answer. There are many Christians, even they have this perspective, it's my money, so what I want to do with my money, it's none of your business. बहुत से मसीह लोग ये सोचते हैं कि तो मेरा पैसा है तो मैं अपने पैसे से जो कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या. Yeah, it's none of our business, but it's God's business. हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर का लेना देना है. Are you guys getting what I'm saying? So आप इस बात को समझो कि पैसा हमारा रिवॉर्ड नहीं है. So that you understand that money is not our reward. Okay? ये क्लियर है सबको? Is this clear to everyone? फिर से बोलो, पैसा मेरा रिवॉर्ड नहीं है. Say this again. Money is not my reward. So अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की तरफ से वो अप्रूव्ड है. If someone has more money, does not mean that they are approved of God या वो ब्लेस्ड है. or they are blessed. रिवॉर्ड तो आखिरी में मिलेगा. The reward will be given at जब the end. रेस को पूरी कर लोगे. रेस अभी सब भाग रहे हैं हम लोग. When you would have fulfilled your race. Right now all of us are running our race. हाँ, आपने देखा है, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, और ये बहुत बारी होता है, एक सब लोग भाग रहे हैं, एक व्यक्ति सबसे आगे भाग रहा है. This happens a lot of times that everybody is running and there's one person running right in सबसे front. आगे भाग रहा है. Who's at the वो front. शायद किसी ने वीडियो देखी होगी, और वो एक रोप सा, एक रस्सा सा उसके सामने आ गया और उसका पाँव में फंस गया. And a rope came and got stuck in his feet. बिल्कुल एंड में, Right at the end. जहाँ पे पास्टर सामर्थ्य, वहाँ पे फिनिशिंग लाइन है. Right where I am, there was a finishing line. साइड से एक रोप आई और उसके पाँव में फंस गई. A rope came and got entangled in his feet. लगड़ाता गया. And he was जो बगल में था वो तेजी से फर्स्ट आ गया. he wasn't able to run. The person next to him ran ahead and won. अब मैं जो भी देखूँ ना, मुझे उसमें गॉस्पेल दिखाई देता है. Whatever I see the gospel in it. मुझे उसमें एक मैसेज दिखाई देता है. I see a message in it. Put Hebrews 12:1. इब्रानी 12 उसका 1. हम लोग 12:1 देखते हैं, ताकि ये ना हो हम लोग मिसअंडरस्टैंड ना कर लें, क्योंकि मेरे को बहुत परमेश्वर ने धन दिया तो मैं जो हूँ प्रभु की तरफ से एकदम अप्रूव्ड, मेरा बहुत बढ़िया था मैं. So that we would not misunderstand that because God has given me a lot of wealth, that means I was approved of God. ठीक है, ये वचन आप यहाँ पर आए हो, मैं चाहता हूँ हम हर एक चीज को सही, पैसे की एक जगह है हम उसको वहीं रखें, उससे ऊपर नहीं रख सकते पैसे को. कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? You have come here and I want you to have a right perspective from the word. There is a place for money and we should not place it above its अगर place. पैसे को उसकी जगह से ऊपर रखोगे जहां परमेश्वर ने नहीं रखा, तो पूरी लाइफ में डिसऑर्डर आ जाएगा. If you will put money in that place which God has not given to money, then there will be a disorder in क्योंकि your whole life. परमेश्वर ने हर एक चीज का ऑर्डर है. Because God has ordained an order for everything in life. में सो गए और
महिमा में जिन्होंने प्रवेश किया। These are those saints who slept in the Lord before us and have entered into glory. मगर आपको पता है कई बारी वो, अब मैं कैसे आपको बताऊं, कुछ लोग इस बात को समझेंगे नहीं, मगर कई बारी प्रभु अलाव करता है उनको भी आकर वो भी स्वर्गदूतों के साथ देखते हैं। But the Lord sometimes allows them also to come along with the angels to come and see. मैं रोहिणी में था, एक छोटा सा घर था जहाँ पे मीटिंग चल रही थी, I was in Rohini in a small house. There was a meeting going on. और प्रभु ने मुझे जो वचन दिया था वो ऑनर के ऊपर दिया था, आदर के ऊपर, And the word that the Lord had given to me was on honor. और आराधना चल रही थी। Worship was going on. मैंने आंखें बंद करी आराधना के लिए, I closed my eyes for और worship. जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, आई वाज सक्ड अप टू अ विजन। And as soon as I closed my eyes, मैं एक दर्शन में उठा लिया गया. और मैंने देखा कि मैं एक बड़े से एरिना में हूँ, जो And I देखते हो आप जहाँ खेल होते हैं, and I saw like a huge sports arena. और पूरे ब्लीचर्स में, पूरे जहाँ बैठने का होता है वहां पर सारे एंजल्स नहीं है, सेंट्स हैं, क्लाउड ऑफ विटनेसेस है। And in all the bleachers where there's a place to sit, there's clouds of witnesses. There's saints of God seating. मुझे पता है ये लोग जिंदा थे और अब ये महिमा में जा चुके हैं। I knew this, that they were all alive at a point in time, and now they've all entered into glory. और वो एक साथ ये बोल रहे थे, preach this word, Come on. preach this word, And they were all saying preach it in together. this word। They were all saying it together. Preach this word. इस उस वचन दिन का मुझे प्रचार पता करो. चला ऑनर परमेश्वर के राज्य की हार्ट बीट है, That day I understood that honor is the heartbeat of the kingdom of God. और इसीलिए शैतान डिसऑनर ले आता है, Which is क्योंकि वो why- डिसऑर्डर लाना चाहता है। Which is why the devil brings dishonor, because he wants to bring disorder. आमेन। सो आप सोच सकते हो, अपोस्टल पॉल आपको देख रहा है, Paulus प्रेरित आपको देखने आया. अब्राहम आपको देख रहा है, Abraham is वो looking कहता है at you. रेस हमने शुरू करी है, They say we have started the race, मगर रेस हमें पूरी करनी है। but now you have to complete it. परमेश्वर का राज्य कैसा है, आपने देखा रिले रेस होती है, The kingdom of God is like a relay race. तो एक बंदा भागता है पूरी स्पीड से, One man runs with all their फिर जब might. स्पीड से भागता है When they run with all their might, तो जो क्या बोलते हैं, बेटन जो भी होता है वो, They pass on the वो baton आगे देता to the है। next runner. अब इसकी रेस पूरी हो चुकी, अब जो आगे का धावक है उसकी रेस शुरू होती है। Now he has completed his race. The next runner has to run the race now. हमसे पहले जो चले गए उन्होंने अपनी रेस को पूरा किया, अब हमारे ऊपर है कि हम अंत तक अपनी रेस को पूरा करें। Those who have gone ahead of us have completed, fulfilled their race. Now it is up to us to fulfill our race. सो ध्यान से इस बात को सुनो और समझो, Hear and कि understand पैसा carefully. हमारा रिवॉर्ड, बोलो पैसा मेरा रिवॉर्ड नहीं है। Say, money is not my reward. आमेन। वो एक टूल है, It's a tool. और टूल होगा तो लाइफ में स्ट्रगल कम होगा। If you have a tool to use, you'll have less struggle in life. एक कील को आप नाखून से खोलने की भी कोशिश कर सकते हो, You can try to open a screw with your चम्मच से nail, भी खोलने की कोशिश with कर a सकते हो। spoon. हाँ, हम सबने ट्राई किया कुछ You ना all कुछ। tried it. मगर स्क्रू ड्राइवर से खोलोगे तो टाइम बचेगा, But with a screwdriver, you will save time. इजी होगा। It'll be easier सो to do it. टूल क्या करता है, चीजों को इजी कर देता है। What a tool does is it makes things easier. सो पैसा केवल एक टूल है। So money is only a tool. हाँ, रिवॉर्ड, कोई देखा है कि पेचकस को पकड़ के कोई कह रहा है हाय मेरा पेचकस। Have you seen anyone holding onto the screwdriver and saying, "Oh, it's my screwdriver"? टूल का एक काम है, हमें पता है ये टूल इस काम के लिए, उस काम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स इट। Tool. ऐसे ही पैसा एक टूल है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने दिया है उस काम के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, मगर रिवॉर्ड अंत में मिलेगा जब रेस को पूरी कर लेंगे। Money is a tool. God has given it to us for a purpose, but our reward we will receive at the end when we fulfill our race. आप जानते हो, अगर आप सच्चाई से दौड़ रहे हो, You know, if you are running honestly, सो जब घर जाने का टाइम होगा ना, आपको पता होगा पहले से। when it will be time to go home, you will know it beforehand. सडन डेथ नहीं है संतों के लिए। There is no sudden death for His saints. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many of you understand? सडन डेथ नहीं है संतों के लिए। There is no sudden death for His saints. हाँ, घर आने से पहले चिट्ठी आ जाएगी आपके पास, Before you are about to go home, you will receive a letter. चिट्ठी आ जाएगी, पापा पहले ही चिट्ठी भेजेंगे, बेटा घर आने का टाइम आ गया है। Dad will send the letter, son, it's time to come back home. देखो पौलुस क्या कह रहा है,
दूसरा टिमोथी 4:6 में, What Paul says in 2 Timothy 4:6. for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at. It's my time to depart. So it was not a sudden death for Paul. पौलुस के लिए अचानक मृत्यु नहीं थी वो, He knew it. उसको पता था पहले से. क्यों उसके जाने का समय आ गया वो भी आपको बताता हूं. Why was it his time to go? आगे बताता है वो. He tells. 7th, I have fought departure. ये हमारे आखिरी शब्द होने चाहिए हमारे कूच से पहले. मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी. I have fought a good fight of faith. मैंने अपनी रेस को पूरा किया. I have finished my race. आओ एक काम करें, एक प्रार्थना करें. बोलो प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं अधूरी रेस करके नहीं आना चाहता स्वर्ग में. Let's pray, Lord, give us that grace. कम ऑन प्रे करो. एक I don't want प्रार्थना to करो. come back बोलो प्रभु home. मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपनी रेस को पूरी करके अपने घर जाऊं. Lord, I don't want to come back home without finishing my race. Give me the grace to complete my race आप and जानते then हैं come कितने home. मसीह हैं जो आधी अधूरी रेस करके घर चले गए. You know, so many believers went back home with an incomplete race. Tell him, Lord, I want to finish my race. उससे कहें प्रभु मैं अपनी दौड़ को पूरा करना चाहता हूँ. I have fought the good fight. मैंने अच्छी कुश्ती मैं लड़ी. आपको आज बताना चाहता हूँ मसीह जीवन की ब्लेसिंग इसमें नहीं है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें थी, कितना बड़ा नाम था, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री थी, कितना बड़ा बिजनेस था. मसीह जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मैंने अपनी रेस को पूरा किया है. I want to tell you the biggest blessing of a Christian walk is not how great a name you had or what business you had, but that I have fulfilled my race. जो मुझे मेरी रेस से दूर ले जाए. What good was that business, that ministry, that whatever I did that took me away from my race? क्योंकि अंत में ये फर्क नहीं पड़ेगा वसंत कुंज में कितनी बड़ी कोठी थी. Because at the end it would not matter how big a mansion you had in Basant Kunj. हाँ, कौन सी आपने गाड़ी चलाई. What car you drove. अंत में ये होगा In the क्या end. तूने जो मैंने काम दिया था उसको पूरा किया पृथ्वी में या नहीं. In the end, what will matter is whether you finish the assignment that I gave to you or not. And I believe as a church, I pray this for me, my family and all of my family here, that we will live with the perspective of eternity in the name of Jesus. और मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सारे परिवार के लिए जो यहाँ पर है ये प्रार्थना करता हूँ क्या हम अनंत के दृष्टिकोण को सामने रखकर जीवन जिए. कई बारी जब हम अनंत को आगे नहीं रखते ना तो यहाँ का जो जीवन है ना इसका भार बहुत बढ़ जाता है. Many a times when we don't keep eternity ahead in front of us, the weight of this life seems too overwhelming. तो यहाँ के दुख बहुत बड़े लगते हैं. So the sorrows of this world seem too big. सुख बहुत छोटे लगते हैं. The good things look too small. कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है. There's too much comparison. दिल जल्दी दुख जाता है. You get easily offended or hurt. और जल्दी से हम वो करने लग जाते हैं जो दुनिया के लोग करते हैं. And we quickly start doing what the people of the world do. भूल जाते हैं We forget हम अलग किए गए लोग हैं. that we are separated people. कलीसिया का मतलब ही ये है हम अलग किए गए लोग हैं. The word church itself means that we are a people set apart. अलग किए गए हैं We are a people एक काम के separated लिए. for an assignment. आप जानते हैं आजकल मैं और मेरी वाइफ हम लोग रोज एक प्रार्थना करें प्रभु हमें वो ब्लेसिंग नहीं चाहिए जो तेरी तरफ से ना आए. You know, me and my wife, we are daily praying this prayer, Lord. We do not want a blessing that is not from you. हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए जो तेरी तरफ से ना आए. We do not want an opportunity that's not from you. क्योंकि गोल एक बड़ा नाम ज्यादा पैसा नहीं है. Because the goal is not to have a big name or more money. अगर प्रभु ज्यादा पैसा आपके हाथ में डालेगा उसके पीछे एक कारण है क्यों डाल रहा है. If the Lord will put big money in your hands, there is a reason behind it. मगर वो रिवॉर्ड नहीं है. But that is not a reward. रिवॉर्ड तो ये है कि अंत में आप अपनी पूरी रेस को पूरा कर सकते. The reward is this, that at the end you would have fulfilled your race. आप जानते हैं मैं एक डॉक्टर का मैं एक वीडियो देख रहा था.
वो उस जगह में काम करता था जहाँ पे लोगों की डेथ होती है, तो उस कह रहा मैंने हज़ारों लोगों को मरते हुए देखा है, आखिरी सांसें लेके मरते हुए। I was seeing the video of a doctor who used to work in a place where people die. People die, and he said, "I've seen thousands of people die taking the last और breath." कहता है एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि हाय काश मेरे पास और बड़ा घर होता, And not even one person said at the end, "Oh, I wish I had a bigger house. और मेरे पास शायद और बड़ी गाड़ी होती। I wish I had a bigger car." और कहता मोस्ट लोगों ने ये बोला, But he said most people would say वो रिग्रेट में थे, काश मैंने वो कर लिया होता, that I काश wish मैंने अपने परिवार को और प्यार किया होता, I wish I did that. I wish I loved my family काश more. मैंने ईमानदारी से अपने जीवन को जिया होता। I wish I lived my life with honesty. हम सबके पास एक जीवन है We all have one life. और मेरी ये प्रार्थना है, और केवल अनुग्रह से ही, मैं यहाँ पर खड़ा होकर घमंड से नहीं कह सकता मैं अपनी रेस बढ़िया पूरी करूँ, नहीं, मैं तो प्रभु तेरे अनुग्रह ही से हम आखिरी तक अपनी रेस को पूरा कर सकते हैं। And I cannot stand here with pride and boastfully say that I will fulfill my race properly, but I know that, and I say, Lord, only by your grace can we fulfill our race. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिसको चाहिए ना उसको वो मिलता है। Whoever wants whatever they get it. कई लोग हैं जिनकी होड़ होती है अमीर हो जाना, वो हो जाते हैं अमीर। Some people want to get rich and they do get rich. हमारा मकसद वो नहीं है। That's not our aim. आप समझ रहे हैं? कई लोगों के लिए रिच होना डेस्टिनेशन है, हमारे लिए रिच होना डेस्टिनेशन नहीं है। For many people, getting rich is the destination. For us, it is not the destination. आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं, पूरी लाइफ उन्होंने पागलों की तरह काम किया, और जब वो चीज़ मिल गई तो लगा ये क्या है, लाइफ तो मेरी ख़त्म हो गई। तो कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया उसके बाद, बड़े बड़े एक्टर्स ने, बड़े बड़े जब पैसे मिल गए, क्योंकि जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा उसके बाद। Many people labored hard all their life to attain, to achieve something, and when they got it, they were so disappointed that this means nothing. And many of those big actors, big achievers, they committed suicide. मैं क्यों आपको ये बात बोल रहा हूँ? Why am I telling you this? जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, As years are progressing, हमारी इटर्निटी की अवेयरनेस और बढ़नी चाहिए। our awareness of eternity should grow. क्योंकि घड़ी चल रही है The clock is ticking, और हम लगातार अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हैं। and we are constantly running towards our aim. एक आपने देखा है, जो रेस में दौड़ते हैं उनको जूते की जरूरत होती है, Those who run a race require shoes. और दौड़ते हैं, बीच में पानी की बोतल मिलती है। ऐसे ही पैसा भी है, वो एक टूल है जो आपको रेस में दौड़ने के लिए चाहिए, आपको दिया जाएगा आपकी रेस के हिसाब से। And while they are running, somebody hands a bottle of water to them on the way. That's how money is. To fulfill your race, you will be given whatever you need. Amen. पर रिवॉर्ड वो नहीं है। But that is not the reward. मैं आजकल रोज प्रभु से ये बोलता हूँ, मैं तो प्रभु आई वॉन्ट टू फिनिश वेल। Amen. Every day I tell the Lord these days, Lord, प्रभु मैं अच्छा अंत करना चाहता हूँ। हमें अच्छा अंत करना है चर्च, We have to do a good end. हमें अपनी रेस को पूरा करना है। We have to fulfill our race. The weight of this world इस दुनिया के जो भार हैं, can pull us down that we can forget who we are. वो हमें नीचे की ओर खींच सकते हैं इस हद तक कि हम भूल जाएं हम कौन हैं। जब आप इटर्निटी के पर्सपेक्टिव से जियोगे ना, When you will live with the perspective of eternity, सो दुख को बहुत इजीली एंड्योर कर लोगे, you will easily be able to endure sorrows. और जब कोई बड़ी चीज होगी ना तो आपको घमंड से फुलाएगी नहीं, And when something big will happen, it will not puff you up. क्योंकि आपको पता है कि मेरी रेस, मेरे को रेस पूरी करनी है। Because you know I have to fulfill my race. Amen. Amen. So I pray 2 Timothy 4:7 may be our words in the end. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि 2 तिमोथी 4:7 अंत में हमारे मुंह के शब्द हों, कि हम आप अपने बच्चों को बोल सको, अपने परिवार को बोल सको,
मैंने अपनी रेस को विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया है। That you will be able to tell your children, your family that I have completed my race faithfully. मैंने विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ी I है। have fought a good fight of faith. पूरी ईमानदारी से मैं यीशु के पीछे चला हूं और आज जब आंखें बंद करूंगा तो उसके साथ अपना अनंत बिताऊंगा। With wholehearted honesty, I have followed after the Lord, and when I close my eyes today, I will spend my eternity with Him. Amen. So in this rat race of becoming rich, don't get lost. So अमीर होने की इस होड़ में खो मत जाना। He's going to trust you with lot of wealth, वो बहुत धन से आप पर भरोसा करेगा, but always take it as a tool. पर हमेशा उसको एक औजार की तरह इस्तेमाल करने के लिए सोचना। That's not our destination. वो हमारी मंजिल नहीं है। देखो वो फिर क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने अपनी रेस को पूरा कर लिया। वर्स 8 में क्या कह रहा है, फाइनली देयर इज लेड अप फॉर मी। क्या हम एक प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जो ब्लेसिंग तेरी ओर से नहीं आती मुझे नहीं चाहिए। Can we बोल pray? सकते हो आप? Can we pray? क्योंकि वो ब्लेसिंग नहीं है, वो श्राप है। Because it is not a blessing, it is a curse. जानते इब्राहिम को जब राजा पैसे दे रहा था, उसने नहीं, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा वरना तू कहेगा तूने मुझे अमीर बनाया। When the king was trying to give money to Abraham, he said, I will not take it because otherwise you will say, you have made me rich. और जैसे हम कलीसिया में आते रहेंगे, हमें बार बार अपने आप को एक दूसरे को एनकरेज करना है। And as we जो हमारे भाई बहन हैं, जो दुख से होके जा रहे हैं, जो स्ट्रगल से होके जा रहे हैं, उनको ये बताना है ये थोड़े समय का है। And as we'll keep coming to the church, we will keep continuing our walk. We have to remind our brothers and sisters who are going through a sorrow that this is not it. Amen. हमें इटर्निटी का पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। We must carry the eternity, the perspective of eternity. आप जानते हैं जैसे हम जी रहे हैं, जो हम कर रहे हैं इज बीइंग केयरफुली रिकॉर्डेड। You know, the way we are living, whatever we are doing, वो बहुत ध्यान पूर्वक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। आप अपने बंद कमरे में किसी भाई बहन के लिए घुटने टेकते हो, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हो, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। If you come to your knees for those who are sick, anything you do for anyone is being closely recorded. राज्य में असली रिवॉर्ड इसका नहीं है जो दिखता है, ये तो सबको दिखता है, इसका रिवॉर्ड तो मिल जाता है यूट्यूब के व्यूज और जो लोग बोलते हैं। असली रिवॉर्ड उस चीज का है जो दिखता नहीं है, जो बंद कमरों के पीछे होता है। The true reward in the kingdom is not what you see. What you see has its own reward on YouTube and what people say, but the true reward is what happens behind closed doors, which nobody sees. Amen. Revelation 22:12. प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12। Revelation 22:12. Hallelujah. Revelation 22:12. Hallelujah. मेरा प्रतिफल मेरे पास है। Jesus is coming with his reward. यीशु अपना प्रतिफल लेके आ रहा है। Amen. You have endured because of your faith. आपको जॉब से निकाल दिया क्योंकि आप एक मसीह हैं। आपके साथ सताव होता है घर पे क्योंकि आप मसीह हैं। Everything is being recorded, and one day you will be rewarded when Jesus Christ comes back. You were terminated from your job because you are a believer, or your family says any bad, evil things about you because you're a believer, or they persecute you, you have a great reward. Amen. अभी जो मैं सिखा रहा हूँ इसकी दूसरी साइड क्या है। देखिए मसीहों की क्या प्रॉब्लम है, या तो वो एक साइड लुढ़कते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइट, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट लुढ़कते हैं। Believers have this problem, they go to extremes, either extreme right or extreme left. एक तरफ है खाई, एक तरफ है कुआं, On one end there is बीच में है रास्ता। On the other So end कई there बार मसीह फिर क्या हो जाते हैं, अरे पैसा तो खराब है, हमें तो चाहिए ही नहीं। sometimes what अब believers टूल ही think, फेंक दिया तो अब क्या कर रहे हैं, अब नाखून से कील खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लग रहा है लाइफ इतनी हार्ड क्यों है। sometimes a believer says, oh, money is evil, we don't need it. Now they've thrown away their tool and they're trying to open the screw with their nails. वो टूल है, टूल। It's a tool.
आमेन। रिवॉर्ड नहीं है। It's not a बोलो reward. पैसा रिवॉर्ड नहीं है, Say money is not a reward. टूल है। It's a tool. हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लेगेसी क्या है? The greatest legacy of life. यस, of our life. परमेश्वर आपको बड़ा घर देगा, बड़ी गाड़ी देगा, आपके बच्चे वो एंजॉय करेंगे, मगर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लेगेसी है जो रेस परमेश्वर ने हमें दी थी, हमने उसको पूरा किया। ये हमारी सबसे बड़ी लेगेसी है। Yes, the Lord will give you a big house, a big car, but our greatest legacy is that you will fulfill the assignment, the call that God has given to you. आमेन। और अगर ना भी दे And even if He doesn't give you, तो भी वो भला है, even then He is तो good. भी उसकी करुणा सदा की है। Even then His mercy endures forever. आमेन, हालेलुया। लुकिंग अनटू जीसस। आज कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मैं आया, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, मेरा वीज़ा नहीं लगा, मेरे साथ ये नहीं हुआ। Today people come and they get offended. I came to the church, I didn't get my visa, God didn't do anything for me. कई लोग ऐसे मिडिल ईस्ट में हैं There are people in the Middle East जिनको मार दिया गया क्योंकि वो मसीह के थे। Who were पाकिस्तान में हैं, who were killed because they loved इंडिया में हैं, in Pakistan, in India, जिनको इतना परसिक्यूशन आ जाता है। who go through so much persecution. उनको क्या मिला यीशु के पीछे चलने? What did they get after following Jesus? जीसस इज कमिंग बैक विद हिज रिवॉर्ड। यीशु वापस आ रहा है अपना प्रतिफल लेके। अनंत में वो अपने परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। In eternity they will reign with their God. Amen. David says this beautiful prayer. I love that prayer. He says, Lord, teach me to number my days. दाऊद ये खूबसूरत प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु मुझे अपने दिन गिनना सिखा। Teach me to number my days. मुझे मेरे दिन गिनना सिखा। Amen. Amen. आइए एक प्रार्थना, आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us We'll all worship stand. the Lord. हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। Hallelujah. मुझे पता है कई लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है खड़े होने में। आपका ये बलिदान भी नोट हो रहा है हेवन में। I know some people are finding it very difficult to stand. Even this sacrifice is being noted. बहुत, ये इतना बड़ा बलिदान जो आप कर रहे हो ना, This great जो आप sacrifice यीशु that मसीह के लिए खड़े हो रहे हो, that you are standing for Jesus. वाह, Wow. आमेन। Amen. अपने आंखों को बंद करो, अपने हाथ को, दाहिने हाथ को अपने हृदय में रखो और बोलो, प्रभु मुझे वो अनुग्रह दे कि मैं अपनी रेस को पूरा कर सकूं। Close your eyes, put your right hand on your heart and say, Lord, give me that grace that I would fulfill my race. उसको बोलो, प्रभु मुझे अनंत, तू वो हृदय दे लॉर्ड कि मैं अनंत को अपने आगे रख के जी सकूं। Say, Lord, give me that heart that I would keep eternity in front of me always. ये जानते हुए प्रभु कि जो मैं जीवन जी रहा हूं, प्रभु हर एक चीज स्वर्ग उसको नोट कर रहा है क्लोजली। Knowing that the life that I am living, Lord, the heavens are noticing everything. और प्रभु यीशु मसीह आप वापस आ रहे हो अपने रिवॉर्ड के साथ। And Lord Jesus, you're coming back with your reward. प्रभु मैं आपसे वो अनुग्रह मांगता हूं Lord, I ask you for that grace. कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊं That I would live such a life जो तुझे महिमा और आदर लाए। which would glorify you and honor you. इन जीसस नेम, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। आई प्रे मैं प्रार्थना करता हूँ every member of this church you will finish your race in Jesus कि इस name. कलीसिया का हर एक सदस्य अपनी दौड़ को पूरा करेगा यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Nobody कोई भी will go home ऐसे घर नहीं जाएगा without finishing their race. बिना अपनी दौड़ को पूरा किए हुए। Amen. आमेन। बोलो, मैं बिना अपनी रेस को पूरा किए हुए नहीं जाऊंगा।